الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توحید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں توضیح الافلاق سے ہمارا باب چل رہا ہے اور ہمارا دوائر کا بیان چل رہا ہے، تو آج انشاءاللہ زجل اس میں سے ہم کچھ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ زجل رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اپنا سوال پیش کر دوں گا۔ کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آگے پھر آج ہمارا جو سبق شروع ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے دائرہ منطقۃ البروج۔ اب دائرہ منطقۃ البروج کیا چیز ہے؟ اگرچہ ہم 2nd لیول میں اس کو پڑھ کے آ چکے ہیں منطقۃ البروج کو، مختصراً تو یہی کہ یہ سورج کا راستہ ہے، تو آئیے ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں حصول برکت کے لیے۔ جو دائرہ عظیمہ معدل النہار کا تقاطع اس طرح کرتا ہے کہ دونوں کے قطبوں میں 23 درجے 27 دقیقے کا فصل ہے، اس دائرہ عظیمہ کا نام منطقۃ البروج ہے۔ جن دو نقطوں پر منطقۃ البروج اور معدل النہار کا تقاطع ہوتا ہے ان میں سے ہر نقطے کو اعتدال کہتے ہیں۔ منطقۃ البروج کا نصف حصہ یعنی 180 درجے معدل النہار کے شمال میں اور نصف حصہ معدل النہار کے جنوب میں ہے۔ منطقۃ البروج کے نصف شمالی کے دو مساوی حصوں کے درمیان جو نقطہ حد مشترک ہے اس کو انقلاب سیفی کہتے ہیں۔ انقلاب سیفی پر 22 جون کو آفتاب آتا ہے، اور منطقۃ البروج کے نصف جنوبی کے دو مساوی حصوں کے درمیان جو نقطہ حد مشترک ہے اس کو انقلاب شتوی کہتے ہیں۔ انقلاب شتوی پر 22 دسمبر کو آفتاب آتا ہے۔ انقلاب سیفی سے دونوں اعتدال 90 درجے پر ہیں، یوں ہی انقلاب شتوی سے بھی دونوں اعتدال 90 درجے پر ہیں۔ معدل النہار سے 23 درجے 27 دقیقے شمال میں انقلاب سیفی ہے، اور انقلاب سیفی سے 66 درجے 33 دقیقے شمال میں قطب شمالی ہے۔ معدل النہار سے 23 درجے 27 دقیقے جنوب میں انقلاب شتوی ہے، اور انقلاب شتوی سے 66 درجے 33 دقیقے جنوب میں قطب جنوبی ہے۔ قطب شمالی انقلاب سیفی سے قریب اور قطب جنوبی انقلاب سیفی سے دور ہے۔ قطب جنوبی انقلاب شتوی قطب شمالی انقلاب شتوی سے دور ہے۔ انقلاب شتوی پر کھڑے ہو کر معدل النہار کو بائیں جانب لینے پر جو اعتدال چہرے کے سامنے پڑے گا اس کو اعتدال ربیعی کہتے ہیں۔ اعتدال ربیعی پر 21 مارچ کو آفتاب آتا ہے۔ انقلاب سیفی پر کھڑے ہو کر معدل النہار کو دائیں جانب لینے پر جو اعتدال چہرے کے سامنے پڑے گا اس کو اعتدال خریفی کہتے ہیں۔ اعتدال خریفی پر 24 ستمبر کو آفتاب آتا ہے۔ منطقۃ البروج کے 4 حصے ہو گئے۔ ایک حصہ اعتدال ربیعی سے انقلاب سیفی تک، اس حصے میں آفتاب 21 مارچ سے 22 جون تک رہتا ہے۔ دوسرا حصہ انقلاب سیفی سے اعتدال خریفی تک، اس حصے میں آفتاب 22 جون سے 24 ستمبر تک رہتا ہے۔ تیسرا حصہ اعتدال خریفی سے انقلاب شتوی تک، اس حصے میں آفتاب 24 ستمبر سے 22 دسمبر تک رہتا ہے۔ چوتھا حصہ انقلاب شتوی سے اعتدال ربیعی تک، اس حصے میں آفتاب 22 دسمبر سے 21 مارچ تک رہتا ہے۔ آفتاب ہمیشہ منطقۃ البروج ہی پر رہتا ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ 21 مارچ کو اعتدال ربیعی پر ہوتا ہے جو معدل النہار پر ہے، پھر معدل النہار سے شمال کی طرف آفتاب ہٹتا جاتا ہے یہاں تک کہ 22 جون کو انقلاب سیفی پر پہنچ جاتا ہے، اور معدل النہار سے 23 درجے 27 دقیقے شمال کی طرف دور ہو جاتا ہے، پھر معدل النہار سے قریب ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ قریب ہوتے ہوتے 24 ستمبر کو اعتدال خریفی پر آ جاتا ہے جو معدل النہار پر ہے، پھر معدل النہار سے جنوب کی طرف دور ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ 22 دسمبر کو انقلاب شتوی پر پہنچ جاتا ہے، اور معدل النہار سے 23 درجہ 27 دقیقہ جنوب کی طرف دور ہو جاتا ہے، پھر معدل النہار سے قریب ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ قریب ہوتے ہوتے 21 مارچ کو پھر اعتدال ربیعی پر آ جاتا ہے۔ اعتدال ربیعی اور انقلاب سیفی کے درمیان جب آفتاب رہتا ہے تو اکثر آبادیوں میں موسم ربیع ہوتا ہے، یعنی موسم بہار ہوتا ہے، یعنی 21 مارچ سے 22 جون تک موسم ربیع ہے۔ انقلاب سیفی اور اعتدال خریفی کے درمیان جب آفتاب رہتا ہے تو اکثر آبادیوں میں موسم گرما ہوتا ہے، یعنی 22 جون سے 24 ستمبر تک موسم گرما ہے۔ اعتدال خریفی اور انقلاب شتوی کے درمیان جب آفتاب رہتا ہے تو اکثر آبادیوں میں موسم خریف ہوتا ہے، یعنی خزاں، یعنی 24 ستمبر سے 22 دسمبر تک موسم خریف ہے۔ انقلاب شتوی اور اعتدال ربیعی کے درمیان جب آفتاب رہتا ہے تو اکثر آبادیوں میں موسم سرما ہوتا ہے،
यानी 22 दिसंबर से 21 मार्च तक मौसम सरमा है। बाज़ अफलाक का जो मिंतका है, यानी उनके अंदर जो सितारे हैं, उनका जो रास्ता है वो दायरा मिंतकातुल बुरूज पर मुंतबिक नहीं है। जैसे माइल कमर, मुदीर तारद, 6 हमामिल तदवीर। बाज़ अफलाक का मिंतका दायरा मिंतकातुल बुरूज पर मुंतबिक है, जैसे जौज़हर और शम्स का खारिजुल मरकज़, शम्स का फ़लक कुल्ली, खमसा मुतहय्यरा के अफलाक कुल्लिया। जो फ़लक मुवाफ़िकुल मरकज़ हो उसका मिंतका दायरा मिंतकातुल बुरूज पर भी मुंतबिक हो, इनको मुमस्सिल कहते हैं। जैसे जौज़हर, शम्स का फ़लक कुल्ली और खमसा मुतहय्यरा के अफलाक कुल्लिया। जो फ़लक मुवाफ़िकुल मरकज़ हो और उसका मिंतका दायरा मिंतकातुल बुरूज पर मुंतबिक ना हो उसको माइल कहते हैं। जैसे माइल कमर। जिन दो नुक्तों पर माइल का मिंतका दायरा मिंतकातुल बुरूज का तकातो करता है उनमें से एक को रास और दूसरे को ज़म्ब कहते हैं। हामिल तदवीर, कमर का मिंतका माइल कमर के मिंतका पर मुंतबिक है और माइल कमर का अर्ज़ पूरे 5 दर्जे है, यानी चाँद का जो मैल है वो सूरज के मुकाबले में 5 दर्जे ज़्यादा होता है। यानी इसका ये 23 दर्जे तक पहुँचता है तो उसका 28 दर्जे 26 दकीक़े तक तकरीबन पहुँचता है। यानी मिंतकातुल बुरूज से कमर के मिंतका की जो गायत है, ये दूरी है, ये 5 दर्जे है। लिहाजा कमर जब रास पर होता है तो मिंतकातुल बुरूज पर होता है, यानी दोनों बराबर होते हैं। फिर मिंतकातुल बुरूज से शिमाल की तरफ हटता जाता है, यहाँ तक कि हटते हटते पूरे 5 दर्जे शिमाल की तरफ मिंतकातुल बुरूज से दूर हो जाता है। फिर मिंतकातुल बुरूज से करीब होने लगता है, यहाँ तक के करीब होते होते ज़म पर आता है और मिंतकातुल बुरूज पर फिर आ जाता है। फिर मिंतकातुल बुरूज से जुनूब की तरफ हटता जाता है, यहाँ तक कि हटते हटते पूरे 5 दर्जे जुनूब की तरफ मिंतकातुल बुरूज से दूर हो जाता है। फिर मिंतकातुल बुरूज से करीब होने लगता है, यहाँ तक के करीब होते होते फिर रास पर आ जाता है। अब अगली तारीफ़ जो है, इसके समझने के लिए शुरू वाली 2 तारीफ़ात का समझना बहुत लाजमी है, दायरा मौदुन नहार और दायरा मिंतकातुल बुरूज। ये दोनों दायरे अगर आते हों तो मार्रा बिल अक़ताबिल अरबा बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, अगरचे हम दूसरे लेवल में इसको पढ़ के भी आ चुके हैं। आइए अभी भी पढ़ते हैं। जो दायरा अज़ीमा मौदुन नहार के दोनों कुतुबों और मिंतकातुल बुरूज के दोनों कुतुबों पर होकर गुजरता है उसका नाम मार्रा बिल अक़ताबिल अरबा है। मार्रा बिल अक़ताबिल अरबा 2 नुक्तों पर मिंतकातुल बुरूज का तकातो करता है। उन 2 नुक्तों में से एक नुक्ता इनकलाब सैफ़ी और एक नुक्ता इनकलाब शतवी है। मार्रा बिल अक़ताबिल अरबा 2 नुक्तों पर मौदुन नहार का भी तकातो करता है, जिनमें से एक नुक्ता इनकलाब सैफ़ी के करीब और दूसरा नुक्ता इनकलाब शतवी के करीब है। जो नुक्ता इनकलाब सैफ़ी के करीब है उसको नज़ीर सैफ़ी और जो नुक्ता इनकलाब शतवी के करीब है उसको नज़ीर शतवी कहते हैं। नज़ीर सैफ़ी से इनकलाब सैफ़ी तक 23 दर्जे 27 दकीक़े है। यूँ ही नज़ीर शतवी से इनकलाब शतवी तक भी 23 दर्जे 27 दकीक़े हैं। मार्रा बिल अक़ताबिल अरबा के 8 हिस्से हैं। एक हिस्सा मौदुन नहार के कुतुब शिमाली से इनकलाब सैफ़ी तक, दूसरा हिस्सा इनकलाब सैफ़ी से नज़ीर सैफ़ी तक, तीसरा हिस्सा नज़ीर सैफ़ी से मिंतकातुल बुरूज के कुतुब जुनूबी तक, चौथा हिस्सा मिंतकातुल बुरूज के कुतुब जुनूबी से मौदुन नहार के कुतुब जुनूबी तक, पाँचवां हिस्सा मौदुन नहार के कुतुब जुनूबी से नज़ीर शतवी तक, छठा हिस्सा नज़ीर शतवी से इनकलाब शतवी तक, सातवां हिस्सा इनकलाब शतवी से मिंतकातुल बुरूज के कुतुब शिमाली तक, आठवां हिस्सा मिंतकातुल बुरूज के कुतुब शिमाली से मौदुन नहार के कुतुब शिमाली तक। मार्रा बिल अक़ताबिल अरबा की अक्सर कौस जो मौदुन नहार और मिंतकातुल बुरूज के दरमियान या कुतुब मौदल और मिंतकातुल बुरूज के दरमियान है वो मैल आज़म की मिकदार है, जो तहकीक जदीद से मुफ्ती साहब अपने दौर के हिसाब से बता रहे हैं कि 23 दर्जे 27 दकीक़े साबित हुई है। मैल आज़म को मैल कुल्ली भी कहते हैं। मैल का माना अब बयान किया जाएगा और इसके बाद आगे आता है फिर दायरातुल मेल। मौदुन नहार से, यानी दूसरे अल्फाज में अगर ज़मीन पर मानते हैं आप चिपटा हुआ, तो चूँकि दायरा तो आसमानों में होता है, तो ज़मीन पर चूँकि ख़त्ते इस्तिवा होता है, तो मौदुन नहार से शिमाल या जुनूब की तरफ मरकज़ शम्स या फ़लक का कोई नुक्ता हटा हुआ हो तो उसे मैल कहते हैं, और किसी दूसरे कोकब का मरकज़ हटा हो तो उसे बोदे कोकब कहते हैं। यानी या तो शम्स का हटा हो या फ़लक का, तो उसे मैल कहते हैं। अगर इसके अलावा किसी और का हटा हुआ हो मौदुन नहार से तो उसको बोदे कोकब कहते हैं। फ़लक का जो नुक्ता मौदुन नहार से हटकर शिमाल या जुनूब में हो उसे नुक्ता माइला कहते हैं। जो दायरा अज़ीमा मौदुन नहार के दोनों कुतुबों, मौदुन नहार के दोनों कुतुब वही आम कुतुब जो होते हैं यही से गुज़रता है, उस दायरा का नाम दायरातुल मेल है। अब ये किसी भी तूल पर हो सकता है, यानी हमारे समतुल राज से होकर गुज़रे,
हमारे समतल राह से होकर ना गुजरेगा। अगर हमारे समतल राह से होकर गुजरेगा तो दायरा निस्फ नहार और दायरातुल मेल बराबर हो जाएगा। अगर इस तरह से ना गुजरेगा तो फिर हमारा दायरा निस्फ नहार तो नहीं बनेगा, लेकिन दायरातुल मेल बनेगा। यानी दायरातुल मेल में उमूम है। मौदुल नहार और नुक्ता माइला के दरमियान दायरातुल मेल की दो कौसें होती हैं। एक कौस मौदुल नहार से निकलकर मौदुल नहार के कुतुब पर गुजरते हुए नुक्ता माइला पर पहुंचती है, ये कौस बड़ी है। एक कौस मौदुल नहार से निकलकर नुक्ता माइला पर डायरेक्ट पहुंचती है, बीच में कुतुब हायल नहीं होता, लेकिन मौदुल नहार के किसी कुतुब पर होकर नहीं गुजरती है, ये कौस छोटी है। यूँ ही मौदुल नहार और मरकज़ कोकब के दरमियान भी दायरातुल मेल की छोटी बड़ी दो कौसें होती हैं। दायरातुल मेल की अक्सर कौस जो मौदुल नहार और नुक्ता माइला के दरमियान हो, नुक्ता माइला के मैल अव्वल की मिकदार है। दायरातुल मेल की अक्सर कौस जो मौदुल नहार और मरकज़ शम्स के दरमियान हो, वह शम्स के मैल अव्वल की मिकदार है। दायरातुल मेल की अक्सर कौस जो मौदुल नहार और किसी दूसरे कोकब के मरकज़ के दरमियान हो, बहुत कोकब की मिकदार है। दायरातुल मेल मोदल और हर मदार यौमी को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। अब अगली तारीफ़ है दायरातुल अर्ज़। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं मिंतक़तुल बुरूज की, कि मिंतक़तुल बुरूज से शिमाल या जुनूब की तरफ किसी कोकब या तदवीर का मरकज़ हटा हुआ हो तो उसे अर्ज़ कोकब या अर्ज़ तदवीर कहते हैं। यानी मिंतक़तुल बुरूज का मरकज़ तो वही है जो मरकज़ आलम है। तो फरमाते हैं ये किसी अब मिंतक़तुल बुरूज की बजाय किसी कोकब या फिर किसी तदवीर का मरकज़ अगर हटा हुआ हो, उसे अर्ज़ कोकब या अर्ज़ तदवीर कहते हैं। जो दायरा अज़ीमा मिंतक़तुल बुरूज के दोनों कुतुबों से गुज़रता है, उसका नाम दायरातुल अर्ज़ है। अब देखिए दायरातुल अर्ज़ क्या है, कि मिंतक़तुल बुरूज के जो दो कुतुब हैं, इनको टच करता हुआ एक दायरा जो है वो क्रॉस हो, उसको दायरातुल अर्ज़ कहते हैं। मैल को दायरातुल अर्ज़ से नापते हैं तो उसका नाम मैल सानी रखें। यानी अगर मैल को अगर हम दायरातुल अर्ज़ से नापेंगे तो उसका नाम मैल सानी रखेंगे, जो मिक़दार निकलेगी। मिंतक़तुल बुरूज और नुक्ता माइला के दरमियान दायरातुल अर्ज़ की दो कौसें होती हैं। एक कौस मिंतक़तुल बुरूज से निकलकर उसके कुतुब पर गुजरती हुई नुक्ता माइला पर पहुंचती है, और ये कौस बड़ी होती है जिस तरह पीछे हमने पढ़ा। और एक कौस मिंतक़तुल बुरूज से निकलकर डायरेक्ट नुक्ता माइला पर पहुंचती है, इसमें बीच में कुतुब हायल नहीं होता, लेकिन मिंतक़तुल बुरूज के किसी भी कुतुब पर होकर ये गुजरती नहीं है, तो ये कौस छोटी है। यूँ ही मिंतक़तुल बुरूज और मरकज़ कोकब के दरमियान भी दायरातुल अर्ज़ की जो छोटी बड़ी दो कौसें होती हैं। दायरातुल अर्ज़ की अक्सर कौस जो मौदुल नहार और नुक्ता माइला के दरमियान हो, वो नुक्ता माइला के मैल सानी की मिकदार है। दायरातुल अर्ज़ की अक्सर कौस जो मौदुल नहार और मरकज़ शम्स के दरमियान हो, वह शम्स के मैल सानी की मिकदार है। दायरातुल अर्ज़ की अक्सर कौस जो मिंतक़तुल बुरूज और मरकज़ कोकब के दरमियान हो, वह अर्ज़ कोकब की मिकदार है। अब इसीलिए अर्ज़ कमर जो है वो 5 दर्जे बताया गया, कि वजह यह कि वो मिंतक़तुल बुरूज से 5 दर्जे साइड पर होता है। दायरातुल अर्ज़ की अक्सर कौस जो मिंतक़तुल बुरूज और किसी तदवीर के मरकज़ के दरमियान हो, वो अर्ज़ तदवीर की मिकदार है। 6 दायरातुल अर्ज़ के जिनमें से एक दायरा इनक़िलाबैन से गुजरा है, बाहम इस तरह मुतक़ाते हैं कि मिंतक़तुल बुरूज के 12 हिस्से बराबर बराबर पैदा हो गए। मिंतक़तुल बुरूज के ये 12 हिस्से 12 बुर्ज हैं, यानी हर हिस्सा एक बुर्ज है। हर बुर्ज में 30 दर्जे हैं। 3 बुरूज रबिया हैं, यानी मौसम बहार के 3 बुर्ज हैं, और वो ये हैं हम्मल, सौर, जौज़ा। 3 बुर्ज सैफिया हैं, यानी गर्मी के हैं। सरतान, असद, सुंबला। 3 बुर्ज खरीफिया हैं, यानी ख़ज़ां के हैं। मीज़ान, अक़रब, कौस। 3 बुरूज शतविया हैं, जद्दी, दल्ब, हूत। बुर्ज हमल के मबदा से मशरक़ की तरफ किसी कोकब या तदवीर का मरकज़ हटा हुआ हो तो उसे तूले कोकब या तूले तदवीर कहते हैं, और उसकी मिकदार मिंतक़तुल बुरूज की वो कौस है कि जिसका गरबी किनारा मबदा हमल से मवास हो और शर्क़ी किनारा उस नुक्ता से मवास हो कि जिस नुक्ता पर दायरातुल अर्ज़ और मिंतक़तुल बुरूज का तक़ातो हुआ है। अभी हमने दायरातुल अर्ज़ पढ़ा। अब आज के सबक का हमारा आखिरी दायरा है, और वो है दायरातुल उफ़ुक़। कुतर अर्ज़ यानी अर्ज़ ज़मीन का जो कुतर है, इसके एक किनारे पर एक चीज़, दूसरे किनारे पर दूसरी चीज़ हो, हर एक दूसरे का मुकातिर और मुतकातिर है। दायरातुल उफ़ुक़ उस दायरा अज़ीमा को कहते हैं जिसका एक कुतुब समतल रास, दूसरा कुतुब समतल कदम हो। देखिए दायरा उफ़ुक़ यही होता है
یہ پورا دائرہ ہے، اس کا ایک قطب سمت راست، دوسرا قطب سمت قدم ہے، اس کو افق حقیقی بھی کہتے ہیں۔ عرض 90 میں یعنی 90 درجے عرض برد میں افق حقیقی معدل النہار پر منطبق ہے۔ اس کے علاوہ تمام اقطار میں 2 نقطوں پر وہ معدل النہار کا تقاطع کرتا ہے، جن میں سے شرقیہ کا نام نقطہ مشرق ہے اور غربیہ کا نام نقطہ مغرب ہے۔ افق بدلنے سے نقطہ مشرق بدل جاتا ہے اور نقطہ مغرب بھی۔ 2 شخص متقاطر ہوں تو ہر ایک کا نقطہ مشرق دوسرے کا نقطہ مغرب اور ہر ایک کا نقطہ مغرب دوسرے کا نقطہ مشرق ہوگا، اور جو خط مستقیم نقطہ مشرق اور نقطہ مغرب سے مماس ہے اس کو خط اعتدال کہتے ہیں۔ یعنی زمین پر ایسا ہم نے دائرہ لگایا، اب اس کو ویسے دائرہ کہیں گے، ویسے ورنہ فلکیات دانوں کے اصطلاح میں دائرہ نہیں کہلائے گا، زمین پر لگا ہوا وہ عین مشرق اور عین مغرب سے ہو کر گزرا ہے تو اس کو خط اعتدال کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام خط مشرق و مغرب بھی ہے۔ جب سمت الراس منطقۃ البروج کے کسی قطب پر منطبق ہو تو افق حقیقی منطقۃ البروج پر منطبق ہو جاتا ہے، ورنہ وہ 2 نقطوں پر منطقۃ البروج کا تقاطع کرتا ہے۔ ان میں سے جو نقطہ مشرق کی طرف ہے اس کا نام طالع سے اور جو نقطہ مغرب کی طرف ہے اس کا نام غارب ہے۔ آفتاب ہمیشہ نقطہ طالع سے طلوع کرتا ہے اور نقطہ غارب پر غروب کرتا ہے، لیکن ہر دن طالع بدل جاتا ہے، یوں ہی غارب بھی۔ نقطہ مشرق سے افق کے اس نقطہ کی دوری کو کہ جس نقطہ پر مرکز کوکب یا طالع ہو سیاۃ المشرق کہا جاتا ہے، اور نقطہ مغرب سے افق کے اس نقطہ کی دوری کو کہ جس نقطہ پر مرکز کوکب یا غارب ہو سیاۃ المغرب کہا جاتا ہے۔ افق کے اکثر قوس کے جس کا ایک کنارہ نقطہ مشرق سے اور دوسرا کنارہ منطقۃ البروج یا کسی مرکز کوکب سے مماس ہو وہ سیاۃ المشرق کی مقدار ہے۔ افق کی اکثر قوس کہ جس کا ایک کنارہ نقطہ مغرب سے اور دوسرا کنارہ منطقۃ البروج یا کسی مرکز کوکب سے مماس ہو وہ اب سیاۃ المغرب کی مقدار ہے۔ افق حقیقی کے موازی جو دائرہ صغیرہ ہیں انہیں مقناطرہ کہتے ہیں۔ ان میں سے جو افق کے اوپر ہیں وہ مقناطرہ ارتفاع کہلاتے ہیں، اور جو افق کے نیچے انہیں مقناطرہ انحطاط کہتے ہیں۔ جو دائرہ صغیرہ افق حقیقی کا موازی ہو اور افق حقیقی سے نصف قطر عرض کی مقدار اونچا ہو اس کو افق حصی کہتے ہیں۔ اب اس کا ایک پریکٹیکل مختصر فرما رہے ہیں کہ ناظر کو پرکار کے ایک ساکھ مانیے، یعنی پرکار سے آپ دائرہ لگائیے، پرکار لگی رہنے دیجیے، پرکار کے ایک ساکھ مانیے جو دیکھنے والا ہے، اس کا خط شعاعی بصری جو سطح عرض کو ماس ہو اس کو پرکار کی مدد دوسری ساکھ مان کر فلک الافلاک پر ایک دائرہ بنائیے۔ اس دائرے کا نام افق مرئی ہے، اس کو افق شرعی بھی کہتے ہیں۔ بلفظ دیگر افق شرعی یا افق مرئی اس دائرہ کو کہتے ہیں جو افق حقیقی کا موازی ہو اور زمین پر بسنے والوں کی نگاہ اس دائرے سے نیچے نہ جاتی ہو۔ ناظر کا قد 3.5 ہاتھ ہو تو افق شرقی افق حقیقی سے 4 دقیقہ 26 ثانیہ نیچے ہوگا اور وہ مقناطرہ انحطاط کا ایک فرد ہوگا۔ جس افق کا قطب معدل نہار پر ہے اس کو افق دولابی اور افق استوائی کہتے ہیں۔ جس افق کا قطب معدل کے قطب پر منطبق نہیں ہے اس کو افق رحوی کہتے ہیں۔ جس افق کا قطب نہ معدل پر ہے نہ معدل کے قطب پر منطبق ہے اس کو افق مائل کہتے ہیں۔ افق دولابی معدل اور ہر مدار یومی کو 2 مساوی حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، لہٰذا ایسی جگہ دن رات کبھی حقیقتاً اور اکثر تقریباً برابر ہوتے ہیں، جس کی وجہ لیل و نہار کے بیان میں معلوم ہوگی، اور ایسی جگہ آفتاب کی گردش سیدھی ہوتی ہے، لہٰذا اس کو دور دولابی اور دور استوائی کہتے ہیں۔ دور دولابی کا محل خط استوا ہے، افق راہوی معدل پر منطبق ہے، ایسی جگہ آفتاب کی گردش راہوی ہوتی ہے، لہٰذا اس کو دور راہوی کہتے ہیں۔ دور راہوی کا محل عرض 90 ہے، یہاں ایک دن رات 1 سال شمسی کے برابر ہوتا ہے، لیکن عرض 90 شمالی میں دن بڑا اور رات چھوٹی ہوتی ہے، اور عرض 90 جنوبی میں دن چھوٹا اور رات بڑی ہوتی ہے۔ تفصیل یہ کہ 21 مارچ کو آفتاب اعتدال ربیع سے طلوع کرتا ہے اور 24 ستمبر کو اعتدال خریفی پر غروب کرتا ہے۔ 22 جون کو جب آفتاب انقلاب سیفی پر پہنچتا ہے تو وہاں نصف النہار ہوتا ہے، اور 22 دسمبر کو آفتاب جب انقلاب شتوی پر پہنچتا ہے تو وہاں آدھی رات ہوتی ہے۔ اور عرض 90 جنوبی میں 24 ستمبر کو آفتاب اعتدال خریفی سے طلوع کرتا ہے اور 21 مارچ کو اعتدال ربیع پر غروب کرتا ہے۔
22 दिसंबर को आफ्ताब जब इनकलाब शतवी पर पहुंचता है तो वहाँ निस्फ नार होता है, और 22 जून को आफ्ताब जब इनकलाब सैफ़ी पर होता है तो वहाँ आधी रात होती है। शमसी साल आम आबादियों में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 50 सेकंड का होता है। उफ़क़ माइल सिर्फ मोदिन नहार को 2 मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। ऐसी जगह आफ्ताब की गर्दश हमाइली होती है, इसलिए उसको दौरे हमाइली कहते हैं। समतुल रास जितना मोदल से हटा होगा उतना ही मोदल का एक कुतुब उफ़क़ से ऊपर और दूसरा कुतुब उफ़क़ से नीचे होगा। मसलन समतुल रास 5 दर्जे 10 दकीक़े 7 सानिया मोदल से शिमाल कटा हुआ हो तो मोदल का कुतुब शिमाली उफ़क़ से उतना ही ऊपर और कुतुब जनूबी उफ़क़ से उतना ही नीचे होगा। कुतुब मोदल जो उफ़क़ के ऊपर हो उसका नाम कुतुब फ़ुकानी और कुतुब ज़ाहिर है, और कुतुब मोदल जो उफ़क़ से नीचे हो उसका नाम कुव्वत जुनूबी। कुतुब मोदल जो उफ़क़ से नीचे उसका नाम कुतुब तख्तानी और कुतुब ख़फ़ी है। समतुल रास से मोदल जिस कदर दूर है उसी कदर कुतुब फ़ुकानी से जो मदार यौमी दूर हो वो मदार उफ़क़ के एक नुक्ता से ममास और उफ़क़ के ऊपर होगा, लिहाजा ये मदार हमेशा ज़ाहिर ही रहेगा। इस मदार से लेकर कुतुब फ़ुकानी तक जो मदारात यौमिया होंगे उनमें से कोई उफ़क़ से ममास ना होगा, लेकिन वो सब मदारात भी उफ़क़ के ऊपर ही होंगे और हमेशा ज़ाहिर ही रहेंगे। जो मदार उफ़क़ से ऊपर हो उसको मदार फ़ुकानी और मदार ज़ाहिर कहते हैं, लेकिन जो मदार ज़ाहिर उफ़क़ के एक नुक्ता से ममास हो वो आज़म मदार ज़ाहिर है। समतुल रास से मोदल जिस कदर दूर है उसी कदर कुतुब तख्तानी से जो मदार यौमी दूर हो वो मदार उफ़क़ के एक नुक्ता से ममास और उफ़क़ के नीचे होगा, लिहाजा ये मदार हमेशा ख़फ़ी रहेगा। इस मदार से लेकर कुतुब तख्तानी तक जो मदारात यौमिया होंगे उनमें से कोई उफ़क़ से ममास ना होगा, लेकिन वो सब मदारात भी उफ़क़ के नीचे होंगे और हमेशा ख़फ़ी ही रहेंगे। जो मदार उफ़क़ से नीचे हो उसको मदार तख्तानी और मदार ख़फ़ी कहते हैं, लेकिन जो मदार ख़फ़ी उफ़क़ के एक नुक्ता से ममास हो वो आज़म मदार ख़फ़ी है। आज़म मदार ज़ाहिर और आज़म मदार ख़फ़ी के दरमियान मोदल के अलावा जितने मदारात होंगे सबको उफ़क़ छोटे बड़े 2 हिस्सों में तकसीम करेगा, जिनमें से फ़ुकानी हिस्सा को निहार कोकब की कौस और तख्तानी हिस्सा को लैले कोकब की कौस कहते हैं। मदारात यौमिया की ऐसी 2 कौसें बाहम बराबर होंगी जिनमें से एक निहारिया और दूसरी लैलिया हों, और कौस निहारिया मोदल के एक तरफ हो और कौसे लैलिया मोदल की दूसरी तरफ, और दोनों कौसों का बोध मोदल नहार से बराबर हो। मदार यौमी की जिन 2 कौसों को कौसे नहारिया में बढ़ाने या घटाने पर निहार इस्तिवाई के बराबर होता है उनमें से हर एक को तादील निहार कहते हैं। जो दायरतुल मेल नुक्ते मशरिक़ व मग़रिब से गुज़रे उस दायरतुल मेल और उफ़क़ के दरमियान मदार यौमी की जो अक्सर कौस वो तादील निहार की कुतुब है। जब मदार यौमी की 2 कौसों का मजमुआ घटाने या बढ़ाने पर निहार इस्तिवाई के बराबर होता है तो दोनों कौसों के मजमुआ का नाम तादील नहार होना चाहिए, ना कि हर कौस का। तो जवाब ये कि हर कौस को तादील नहार में दखल है, इसलिए हर कौस का नाम तादील नहार रखा गया है। अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ दायरा निस्फ़ुन नहार से हम अपना जो सबक है वो अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है हुज़ूर, फिर अभी हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मदनी चैनल देखते रहिए। हमारा मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।